Namaste and welcome to NCPCR's webinar. Today we have a fabulous lineup of guests, and we are going to be talking about parenting in the pandemic. Now, as you know, the MHA has issued lockdown number 3, as people are calling it on social media. So this is our third leg of the lockdown extension. It's going to be for another 2 weeks, especially in the red zones and containment areas. Now, parenting in the pandemic has been an issue throughout, and we have a very exciting panel. I'm joined by Dr. Shruti Sharma, Dr. Renu Singh, Ms. Naina Sahasrabudhe, and Dr. Geet Anjali Kumar. Welcome everyone to the show. I know that your mics are muted, but I'm going to have, since you guys are all experts across the spectrum of this topic, can I please have you introduce yourself? Why don't we start with Ms. Naina Sahasrabudhe? Please, welcome to the show, and why don't you tell us a little bit about yourself? नमस्कार, मैं नैना सहस्रबुद्धे। बाय प्रोफेशन तो मैं एक बैंकर हूँ, लेकिन गत 30-32 साल से मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन और विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो बच्चे और माँ साथ में ही आती है, इसलिए इन सोशल इश्यूज से मेरा कुछ जो मंतव्य है वो मैं इसमें रखूंगी। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर सिंह। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेनू सिंह है। आई एम एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, और मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम यंग लाइव्स है। तो यंग लाइव्स का तात्पर्य ही यही है कि हम बच्चों के साथ काम करते हैं और युवती और युवकों के साथ काम करते हैं। So very glad to be on the program. Thank you. जी, thank you. We're very happy to have you. Dr. Sharma. नमस्ते, मैं स्तुति शर्मा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में। आई यूज्ड टू गाइड पीपल, द स्टूडेंट्स ऑफ PhD MSc, and I'm in teaching from last 8 years, and I'm hostel warden also. Right now I'm not having any child but it's really a very tough job. Parenting is a very tough job, and thank you for inviting me on this webinar, and we are looking forward for the questions. Thank you so much. Great, thank you for being here. And last but not least, Dr. Kumar. नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतांजलि कुमार पेशे से मनोवैज्ञानिक हूँ। पिछले 22 सालों से इस काम को दिल से करने की कोशिश कर रही हूँ और दिल से बात करने की कोशिश करती हूँ और दिल से दिल को जोड़ती हूँ। एज अ पेरेंट मेरी उम्र 26 साल है। इन 26 सालों में मेरे बेटे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आज कोशिश यही रहेगी कि जो उससे सीखा है और जो उसने मजबूर किया कि भूल जाओ, ऐसे बड़ा करो मुझे, वही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँ। जी, thank you so much for being here. So I'm very excited to just dive into the topic. Now we have until 5 p.m. so that's not a lot of time because I want all of your inputs. Let's start with Ms. Sahasrabudhe. Why don't, a lot of people are saying, especially parents, I have nieces myself, abhi, schools and students both have had to transition into online learning all of a sudden. So everything, all of their learning, all of their schedules, everything is being planned. It seems, at the beginning on the spot on WhatsApp, I was seeing my niece's phone and I thought I get a lot of messages. But then when I saw her phone, it was, full of messages from this group and this class and that class. So she's like, I'm unable to, just get everything together. It's very overwhelming. So why don't we, instead of talking about the parents first off, why don't we talk about the students, some of the changes that they've had to adapt to, as well as what is in the future, because ye lockdown ke baad, I don't think things are going back to normal right away. I think your mic is off. आपने एकदम सही कहा कि इस पैंडेमिक के बाद में जो दुनिया रहेगी, इट विल बी अ न्यू लाइफ। पहले जैसा ही नहीं रहा। और जैसे आपने कहा कि बच्चों के साथ में बहुत सारे मैसेजेस और उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा है, तो एक मैं यहाँ रखना चाहूंगी कि बहुत बार जब अभी मेरा बेटा 30-32 साल की उम्र का है, तो मैंने इतने सालों में पेरेंटिंग के बारे में ये जरूर सीखा है
कि रोज कुछ ना कुछ जो पहले हमने सीखा है उसको अनलर्न करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे एक नए पर्सपेक्टिव से चीजों की ओर देखते हैं, तो एक अनलर्निंग करने की प्रोसेस मुझे लगता है हमें और ज्यादा लर्निंग प्रोसेस में लेके जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और पेरेंटिंग ये हमेशा ही एक चैलेंजिंग टॉपिक रहा है, तो उसके बारे में मैं एक ABCD बता के मैं आगे जाना चाहूंगी कि जैसे एक्सेप्ट योर चाइल्ड, ए फॉर एक्सेप्ट योर चाइल्ड, B है बिलीव इन योर चाइल्ड। कौन से भी समय में पैंडेमिक हो या ना हो, ये ABCD मतलब ये डूज एंड डोंट लगता है हमने याद रखने चाहिए। दैट मीन्स कंपेयर चाइल्ड विथ अदर, आपके बेटे या बेटी की किसी के और के साथ तुलना मत करिए। और डायलॉग, D फॉर डायलॉग, अगर ये ABCD हम सीख पाएंगे तो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग के बारे में कुछ चंद सीढ़ियां हम चढ़ के आगे जाएंगे। अभी पैंडेमिक है, इसमें एकदम अचानक से जो चीजें हम अभी तक आउटसोर्स करते आए थे, मतलब बच्चों को स्कूल में भेजना या किसी क्रेश में भेजना या किसी नानी दादी के पास भेजना, ये सब आउटसोर्सिंग अपना बंद हो गया है। और हम एक लॉकडाउन में बच्चे और पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आई विल से, नॉट ओनली मदर्स एंड फादर्स, सबको एक साथ बैठने की शायद नौबत आई, इसलिए हम थोड़े से हड़बड़ा गए हैं, लेकिन बहुत तरीके से लोगों ने संभाला है। जब सोशल मीडिया देखते हैं तो लोग नए तरीके एक एक्सपेरिमेंट करके आगे चल रहे हैं, ये हम अच्छे से जान रहे हैं। तो मुझे लगता है शेयरिंग ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल आल्सो ऐड टू द आइडियाज ऑफ द पीपल। जी, thank you so much for that. But I want to hear an answer also from Dr. Singh. Dr. Singh, आप एक educationist है, तो as Ms. Sahasrabudhe was saying, there is an unlearning process that is taking place, and it's taking place at a very fast pace. We're talking about days and weeks, not even months and years. And this sort of new normal, as they are calling it, is going to last past the lockdown as well. So what is the impact on, I don't want to just talk about mothers, but mothers and fathers, because now everyone is home, whether you are working or not. So roles in that essence have completely changed within the household. Yeah, I think इस पैंडेमिक से एक बात तो जाहिर है कि life has taken a new meaning. I think I would go beyond unlearning, because while you're unlearning, like Naina ji said, you're also learning a lot of new things, right? With unlearning comes learning. And I think this is a time where I think parents are definitely stressed. I mean, there's no doubt about it, because these are such long periods of uncertainty. हमें मालूम ही नहीं कि ये कब खत्म होने वाला है, कुछ फियर भी है, कुछ एंजाइटी भी है, हमें ये सबको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये रियलिटी है आज के दिन में। बट द क्वेश्चन इज कि जो पेरेंट्स हैं वो क्योंकि घरों में ही है, आई थिंक दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू आल्सो learn to understand their children more. I think ये एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में सबको इकट्ठा मिलकर खाना, अब हम तीनों मील्स इकट्ठा खाते हैं। हाँ, मैं अपने भी घर की बात करूं तो बहुत सालों के बाद ये हो रहा है कि हम सभी मील्स इकट्ठे खा रहे हैं बच्चों के साथ मिलकर। हम लोग सुबह से शाम तक काम तो करते हैं, काम तो चल रहा है, और शायद कुछ लोग घरों से अभी भी काम कर रहे हैं। मुझे पता है पैनलिस्ट तो सभी काम कर रहे हैं, हम लोग कल बात कर रहे हैं। तो काम तो हो रहा है, मगर काम के साथ साथ मुझे मालूम है कि बच्चों के साथ आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, बहुत सारी, क्योंकि आपने अपना स्ट्रेस उनके ऊपर नहीं लाना है। तो आई थिंक मदर्स एंड फादर्स का ये जो मिलकर एक सहयोग बनकर के मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रह के, ये आज फादर्स को भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ करें, घर को संभालें, बच्चों के साथ मिलकर घरेलू एक्टिविटीज करें। आई थिंक बहुत सारी किचन की एक्टिविटीज, कोई अगर आपके पास कुछ किचन गार्डन है, चाहे कुछ पौधे ही हो, उसके साथ मतलब बहुत सारा कार्य, सफाई का कार्य, इकट्ठे मिलकर जो मिलजुल कर बहुत सारी चीजें हैं। डेफिनेटली न्यू नॉर्मल तो एक नया हो ही रहा है। मुझे लग रहा है सब हर बार आज आदमी एक ये सोच में लगा है कि शायद ये जो रिश्ते हैं हम लोगों के, पेरेंट्स और बच्चों के,
ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के, क्योंकि पेरेंटिंग सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं करते हैं। अगर घर में दादा दादी है, कोई और बुआ है, वो उनके साथ भी पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा एक उनका भी उत्तरदायित्व बन जाता है। तो पेरेंटिंग को लेकर मेरे को लगता है जो पूरे बड़े हैं घरों में, स्पेशली जहाँ जॉइंट फैमिलीज में बच्चे हैं एंड जो न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ शेयरिंग जो हो रहा है, और उसे हमें एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ में लेकर चलना है। अपना स्ट्रेस बांटने का हमें बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम साथ हैं। तो जिन परिवारों में बच्चे हैं और अकेले नहीं है, मुझे लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी व्हिच वी नीड टू बिल्ड ऑन। Gee, and thank you for that, because that helps me transition. I want to get Dr. Sharma's take here. You are, I should say, an assistant professor, और आपने mention भी किया है कि आप hostel की warden हैं. So I want to get your take now on the impact of, as Dr. Singh was saying, this is an opportunity to actually build relationships. But let's talk on behalf of the students, especially, kids of all ages actually have had to adapt. Or I was talking to, some of my friends I've studied overseas. Same thing, same sort of phenomenon is happening actually all around the world. It's not just in India. And let's talk a little bit. This is a important issue here. They were mentioning that because they can't go to their graduations, because the new semesters are starting, the new academic year is starting, extracurricular Yes. activities have been stopped by and large. If you play sports, or if you are, large gatherings have completely stopped. This actually lowers the morale of students as they start their new year. So, क्या impact होता है students पे? What can be done by parents at home that can help ease into this transition a little easier? What is your take as a professor? Actually, regarding this parenting thing, I asked one of my colleagues. She's having an 8-year-old boy. So the thing is, first of all, he never used to pray. वो कभी पूजा वूजा कुछ नहीं करता था, और बच्चा पूरे समय खेलता रहता था ये सब। तो मैंने कहा आप एक काम करो, उनसे बोलो कि तुलसी तोड़ के लाया करेंगे आपके लिए, और उससे बोला करो जब मैं अगरबत्ती लगाऊं तो तुम माचिस से उसको अगरबत्ती को जलाया करो. Putting the child in your act is the only thing you can do right now. If you are doing your household work, or if you are doing your any other work in the house, अगर आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, जस्ट उसको एंगेज करने की कोशिश करिए. उसको क्यूरियस बनाना बहुत जरूरी है. स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है. पुट हिम और हर आउट ऑफ इंटरनेट. ओनली इंटरनेट गेम्स, only mobile phone, only your day to day, like टीवी देख रहे हैं, टीवी पे ही नाच रहे हैं, उनके साथ डांस करिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा. स्टोरी बताइए. मेरी कजिन है, उसने अपने बेटे को रामानुजन की स्टोरी बताई है. नाउ ही नो व्हाट इज रामानुजन कांस्टेंट, who is Shivaji, who was the great warriors in India. So try and bring something live, viable in your child's memory, because this is the most important time for a mother and a teacher, both of them, कि आप अपने स्टूडेंट को या अपने बच्चे को नया क्या दे सकते हो. रिस्पेक्ट आप सिखा सकते हैं, आप उसको डांटिए मत. ट्राई एंड टॉक टू हिम और हर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जस्ट ब्रिंग हिम और हर इन सम एक्टिविटी. अगर आप कैरम खेलें, लूडो खेलें, चेस खेलें, बैडमिंटन खेलें, तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. तो एटलीस्ट वो उतनी देर के लिए मोबाइल फोन से दूर है, बिकॉज आज के बच्चे सारे मोबाइल फोन्स में लगे रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 5 टिल द एज ऑफ 25. एंड टॉकिंग अबाउट स्टडीज, माई ऑल स्टूडेंट्स वर वेरी हैक्टिक, क्योंकि उनको सुबह से बैठना पड़ता है. बट द थिंग इज दे आर एक्टिवली सपोर्टिंग एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द क्लासेस which are going on WebEx and Google Meet and on Zoom also. Previously it was going on Zoom. So they were just asking that, madam, what is our future, when we are going to have our exams, और हम लोगों का असाइनमेंट्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल फाइल्स हमारे पास नहीं है. तो हम उनसे ये बोल रहे हैं कि आप पीपीटी में बनाइए असाइनमेंट्स, आप वर्ड में बनाइए एंड जस्ट सेंड इट टू अस. और हम उनको ट्राई कर रहे हैं मतलब मेरे पास स्टडी मटेरियल यहाँ नहीं था बहुत सारा, तो मैंने उनको स्लाइड से, केस स्टडीज के माध्यम से उनको बहुत सारा पढ़ाया है. लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चे बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, बिकॉज हमेशा उनपे ये रहता है कि कोरोना वायरस है और पैंडेमिक है और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा. और कुछ बच्चे, यू वोंट बिलीव इट, in my 135 class,
40 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, दे कांट इवन कनेक्ट विथ मी, सो आई यूज्ड टू टॉक टू देम एंड आई गिव देम वॉइस मैसेजेस एंड एवरीबडी इन माय टीचिंग स्टाफ यूज्ड टू डू सच थिंग्स. सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट, द मदर्स आर डूइंग देयर बेस्ट, बट उस बच्चे को सिर्फ इसीलिए आप बोल दें क्योंकि आप अगर क्लास ले रहे हो या आप अपना काम कर रहे हो तो उसके लिए टाइम निकालें, कुछ भी करें लेकिन टाइम निकालें. और टाइम निकालने का मतलब ये है एक्टिविटीज में उसका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है. अगर फादर हैं तो फादर को बोलिए उसके साथ मेडिटेट करें, योगा करें, उसको कुछ नई चीज सिखाएं. अगर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, ट्राई देम कि आप उनको पूजा में बिठा लें, कुछ ना कुछ नया सीखें. बिकॉज मैं समझती हूँ औरत 3 पीढ़ियों का निर्माण करती है. So this is a very good time for all the mothers in all over the India or all over the world to connect with the child, support them, make them perfect, try and bring something new in them. And इसी तरह की कोशिश मैं अपने स्टूडेंट्स में कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि ये खराब टाइम नहीं है, कोई खराब नहीं होता. मंथ में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों होते हैं, तो जब वो वक्त था ये वक्त भी नहीं रहेगा. इट इज अ टाइम कि हमको कोप अप करना चाहिए. वी शुड हैव समथिंग लविंग अबाउट देम, वी शुड ट्राई एंड ब्रिंग समथिंग लविंग. अगर लाइट नहीं है तो क्या हुआ, कैरम खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, बाहर चलते हैं, टहलते हैं, कुछ बात करते हैं, पतंग उड़ाते हैं. So these are the things the people can do with each other. So I'm just looking forward for all those things and I'm trying my best कि मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली एजुकेट कर सकूं इस पर्टिकुलर टाइम पर. एंड दे आर हेल्पिंग मी, दे आर हेल्पिंग अ लॉट. जी. And now, Dr. Kumar, I thank you for that answer, Dr. Sharma. Dr. Kumar, what I wanted to ask you is, kya impacts, it's this transition, as Dr. Sharma said, yes, you have to sort of find these activities during the day and, keep the child engaged, keep, no matter how old they are, whether they are a college student or whether they are an 8-year-old boy. But what are some of the impacts that aap parenting coach bhi hai, so what are some impacts that parents face? Because now coming from we are all working throughout the day, but now and everything is at home, your work is at home, your child is at home, all the activities are taking place in the home. What are some of the impacts and how should we address them? What are the best ways that mothers and fathers both can address them to ease the situation as much as possible or minimize the impacts? Somewhere we'll all have to realize कि ये जो समय है ये एक अलग सा कुछ डिफरेंट सा समय है. ये साधारण समय नहीं है, एक असाधारण समय है. तो इस असाधारण समय में हमारी सोच भी थोड़ी असाधारण होगी. यह हमें मानना होगा कि डर, तनाव, आने वाले कल की चिंता, कुछ अकेलापन, ये सब बढ़ गया है, बढ़ रहा है और शायद थोड़ा और बढ़ जाएगा. ये जो चिंता और तनाव है, ये हमारी सोच को काफी हद तक कंज्यूम भी कर लेती है और हमारे उत्साह को कम करने लगती है. वो एक्साइटमेंट जो जिसकी बात डॉक्टर शर्मा कर रही है, जिसकी बात डॉक्टर रेणु भी कह रही हैं, वो बहुत जरूरी है आना, लेकिन उसको लाने के लिए बड़ा एफर्ट करना पड़ता है. क्योंकि एज प्रियंका आपने भी कहा कि हम सब घर में बहुत कुछ कर रहे हैं, शायद एक नॉर्मल रूटीन से भी ज्यादा काम कर रहे हैं. वो जो कामों में हमें असिस्टेंस भी मिल जाती थी वो भी असिस्टेंस नहीं है. तो हमको इतना, वो कहते हैं ना, एक इतने सारे गेंद हैं हमारे हाथ में, सारी बॉल्स को हमने जगल करना है और कोई भी बॉल गिरनी नहीं चाहिए. केयर गिवर का रोल भी अच्छे से होना है, खाना भी अच्छे से बनना है, घर को भी अच्छे सलीके से रखना है, बच्चों को भी टाइम देना है, बड़ों को भी टाइम देना है, आपस में अपने दाम्पत्य रिलेशनशिप को भी समय देना है, खुद को भी समय देना है. भैया भगवान तो नहीं बन पाएंगे, बट यस, परफेक्शन की जुस्तजू कर सकते हैं, एक्सेलेंस की चाह कर सकते हैं, लेकिन थकेंगे, घबराएंगे, ये सब लाजमी है, नॉर्मल है. इस नए नॉर्मल में ये रंगों को भी हमें मानना होगा. तो बच्चों के साथ भी खुल के बात करनी होगी. आज मन नहीं कर रहा, हाँ मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन मन नहीं करने से काम तो नहीं चलेगा ना. मम्मी कब खेलने जाएंगे, रोना आ रहा है. बड़ा बच्चा कहता है मैं कब हैंग आउट करूंगा फ्रेंड्स के साथ, आई एम गेटिंग बोर्ड, इवन आई गेट बोर्ड. माँ कह सकती है मैं भी तो घर में उसी रूटीन में बंधी हुई हूँ. मतलब हम मिलके बोर हो सकते हैं, मतलब हम अपना संवाद बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन
कर सकते हैं, अपने स्ट्रेसेस की बातें भी कर सकते हैं, थक रहे हैं तो थकने की थकान को भी मिलके शेयर कर सकते हैं। वो मंदिर में दिया जलाना, पूजा मिलके करना, पुरानी एल्बम्स को देखना, ये सब कुछ जरूरी है। और शायद ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी खूबसूरती इस, वो कहते हैं ना, काले बादल में एक रोशनी जो है वो यही है कि हम लोग सबको बहुत मौका मिल रहा है। फुर्सत की जुस्तजू तो सबको थी, लेकिन जब फुर्सत आई तो फुर्सत काटते नहीं कटती है, ये आलम है हमारा। तो वील हैव टू समवेयर एक्सेप्ट कि द चेंज विच इज नाउ, विच इज ब्रिंगिंग अप न्यू चैलेंजेस, ये चैलेंजेस रहेंगे, घर में भी रहेंगे, घर के बाहर भी रहेंगे, नए नॉर्मल को समझना होगा। और पेरेंटिंग 24/7 जॉब है, हर वक्त बच्चों के साथ साथ हम कैसे बच्चों को एक इंडिविजुअल रूटीन में डालें, कैसे उनकी एक स्ट्रक्चर हो, कैसे हमारी स्ट्रक्चर हो, बच्चे कैसे हमारी मदद कर सकें, बच्चे कैसे एक समय अकेले में व्यतीत करें अपने कमरे में, या एक ही कमरा है तो सब उस कमरे के एक कोने में अलग अलग भी काम कर रहे हैं लेकिन कनेक्टेड भी हैं। कुछ दिनचर्या का हिस्सा ऐसा हो जिसमें सब मिलके काम करते हैं। तो ये तालमेल बनाना बहुत जरूरी होगा। यही थका रहा है, यही उम्मीद भी जगा रहा है। और आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को कहना चाह रही हूँ कि थके नहीं, डरिए नहीं, डर का आलम बहुत है, लेकिन अंधेरा छटेगा। मुश्किल भी शायद इसीलिए है कि खुद पर खुद का पहरा बहुत है। थैंक यू। Thank you so much for that answer. Ms. Sahasrabuddhe, let's talk a little bit about, as Dr. Kumar was saying, that the entire schedule comes under one roof. You know, you're taking care of the home. You have to spend time with the children. You have to spend time. Some time for yourself is also required. You have to spend time with elders. And you know, I guess you can say it's either a problem or an opportunity, but everyone is under one roof. So you're in very close quarters with everyone while you're doing all of this. So, you know, I think that something that can happen and something that is happening is shayad physical stress ya fir anxiety. This is very normal, not just in children. You know, children, of course, get anxious because, as Dr. Kumar was saying, they cannot go out, they can't meet their friends, they're getting bored, they're getting frustrated. They have to, as Dr. Sharma was saying, they have to adjust. And as Dr. Singh was saying, they have to adjust to new ways of learning and learn this process. One is doing these sort of changes, unlearning, relearning new ways, new tactics, new methodologies to get by. In terms of physical stress, in terms of anxiety that is happening to parents, can you elaborate a little bit on some of the things that are happening in general, and perhaps some ways of minimizing that stress, whether it's physical, whether it's emotional, whether it's mental? अलग अलग तरीके के स्ट्रेस सामने आ रहे हैं। जैसे आपने भी सबने पढ़ा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस भी इस चीज में बढ़ रहा है। किसी को बाहर जाके सिगरेट पीने नहीं मिल रही है तो वो उसका गुस्सा बच्चों के ऊपर उतार रहा है, ऐसी भी चीजें हो रही है। इसलिए हमारा पेरेंट्स का जो स्किल रहेगा वो हाउ यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इसके बारे में हम कैसे सोच के नई तरीके से पुरानी चीजें या नई चीजें कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा। आपने भी शायद देखा होगा, एक सोशल मीडिया में एक वीडियो आया था। एक आदमी ने अपनी छोटे से घर की बालकनी, जो जनरली 7x3 फीट ऐसी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी टेरेस नहीं है, वो छोटी बालकनी है, उस बालकनी में उन्होंने हाफ मैराथन, 21 किलोमीटर्स का हाफ मैराथन उसने दौड़ दौड़ के पूरा किया। तो वो ऐसे रोते नहीं रहे कि मैराथन के लिए मैं बाहर नहीं जा सकता, दौड़ने के लिए रास्ते पे मैं नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने सोचा जो मुझे समय मिला है उसका उपयोग करके मैं ये करूं। तो ये थोड़ा सा अपनी प्रतिभा, अपनी प्रेरणा, अपनी इच्छा, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को कैसे करें। हम अपना जो स्ट्रेस है, काम तो बड़े है, जैसे गीतांजलि ने कहा कि हमें डोमेस्टिक हेल्प जो मिलती थी वो नहीं मिल रही है बहुत सारे लोगों को, या बाहर जाके मन में आया कुछ लाया, बाहर जाके खाया, ये सब चीजें हम नहीं कर पा रहे, तो इसका भी स्ट्रेस हमारे ऊपर जरूर है। लेकिन पेरेंटिंग की जब बात आती है तो वो एक अपना स्किल होना चाहिए कि हम अपना गुस्सा,
अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस बच्चों की तरफ उसको ट्रांसफर ना करें। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको कि हाँ मुझे भी स्ट्रेस आया है, तो ठीक रहेगा। और हर घर की एक्टिविटी में अगर हम बच्चे, बूढ़े, सीनियर सबको इकट्ठा करके हम उसको कर पाएंगे, तो वो नेचुरली हमारा भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। जो नई चीजें सीखने की और सिखाने की बात आई है, तो उसमें मुझे लगता है कि 3-4 मूल्य जो लाइफ टाइम आवर संस्कार है, वो बच्चों में इनकलकेट करने की एक अच्छा मौका हमें मिला है। वो पहला है वो स्वावलंबन का। जैसे कि अभी तक बहुत बार बात होती है कि माँ को मदद करो, ऐसा कहने के बजाय हमने ये कहना चाहिए कि ये घर का काम है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम उसको पूरा करेंगे। तो स्वावलंबन का मूल्य देने का एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है। इक्वालिटी, क्योंकि ये तो एक बड़ा महीन प्रिंसिपल है पढ़ने का, कि कोई भी जितना बुक्स पढ़ के या करिकुलम से सीखता है, उससे भी ज्यादा सीखता है वो अनुकरण से। वो अपने पेरेंट्स को देख के बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो अगर स्त्री पुरुष समानता का मुद्दा है, इक्वल शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज है, इक्वल शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड ऑल एक्टिविटीज है, खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा करने तक, बर्तन मांजने तक, या अपनी चीजों को समेट के रखने तक, ये सब चीजें अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो बच्चे अपने आप में उसमें शामिल हो सकते हैं। उनका समय का भी उपयोग हो सकता है। और लॉकडाउन जैसे बढ़ता जा रहा है, तो अब कोई भी चीज हम अगर 21 दिन करते आते हैं तो उसकी हैबिट या आदत बन जाती है। वैसे इन चीजों की हमें भी आदत हो सकेगी। और एक दूसरे के सम्मान करने का मूल्य भी हम उनको बता सकते हैं। तो स्ट्रेस है, इसकी तरफ निगेटिवली ज्यादा उसकी चर्चा किए बिना हम इस समय में नई क्या चीजें नई तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना होगा। तो इस समय का सही उपयोग हम हमारे परिवार के लिए और आगामी जितने साल हमारी जिंदगी के है उसके लिए ये उपयोग हो सकेगा। लॉकडाउन तो आज नहीं तो कल, 40 नहीं तो 50 दिन में तो खत्म होने ही वाला है, लेकिन हमने इसकी तरफ थोड़ा अलग तरीके से देखना और सोचना चाहिए। जी, thank you for that. Now, Dr. Geetanjali Kumar, there is a very important question that has come from one of our audience members who's watching. And this has been an issue that has been raised by several international bodies as well. That many fathers, so let's just keep it as fathers and mothers, but many parents, right, are unable to interact with their children. Number one, because of alienation, either they are out of station or their children are somewhere, they are somewhere right now because of the lockdown restrictions, right? The other thing is they can be in the household, but there are matrimonial disputes. So alienation somewhat happens, interactions are somewhat strained because now they are happening indoors. Now, as a parenting coach, how does that, there are many such issues. I think he's given a list, emergency duties and so on and so forth. Now, this person who's watching, and thank you so much for this question, sir, but he said that under such times, one need institutional support to reconnect these detached or alienated parents? And if you cannot get that institutional support, what are ways to perhaps reduce that alienation? It's a very loaded question, I know, but I'll throw it to you since you're a parenting coach. I'll try and deliver whatever information I have with me. My own experience and wisdom says कि somewhere हमें कोशिश करनी होगी संचार बढ़ाने की। एलियनेशन तो डेफिनेटली है, बहुत में हमारे पास संचार बढ़ाने के लिए हम आपस में बैठ करने की हमें आदत छूट गई है, तो सारा दिन तो हम सब नहीं बैठ सकते। क्या हम खाना इकट्ठे खा सकते हैं? क्या हम तीनों मील्स नहीं खाना चाहेंगे? हम एक दिन का मील इकट्ठे खा सकते हैं? क्या हम शाम को दिया बाती का रूटीन इकट्ठा बना सकते हैं कि हम 15 मिनट इकट्ठे सब स्पेंड कर लें, जिसमें हर दिन एक परिवार के एक जन को ये ड्यूटी मिलती है कि आज दिया वो जलाएंगे और आज वो सबके लिए प्रेयर करेंगे। तो हर परिवार में रहने वाले हर जन को ये ड्यूटी मिल सकती है। अगर हम दूर हैं, अगर हम एक छत के नीचे नहीं है, तो कम से कम संचार के माध्यम में टेक्नोलॉजी हमारा बहुत साथ देती है। फिर तो हमारा समय है कि हम सब सुबह नमस्कार सबको इकट्ठा करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, जहां परिवार के लोग जहां बिखरे हुए हैं वो सब वहीं से जुड़ जाते हैं। हम मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते हैं, हम शुभ रात्रि कहते हैं, हम दिन में एक बार शाम को सब बात करते हैं, व्हाट्सएप चैट। यहाँ अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फैमिली के साथ काउंसलिंग चलती है, तो पूरी फैमिली में से जब मैं सेशन ले रही थी, तो पोते ने दादी
दादी के साथ एक दादी के लिए एक वॉच पार्टी रखती, क्योंकि दादी माँ को आदत थी कि महीने में हर बार उनकी साई संध्या हुआ करती थी। अब वो उदास है क्योंकि साई संध्या के लिए जा नहीं सकते, तो सब उनकी सहेलियों से वो मिल नहीं पा रही, तो उसने वो 9 की 9 दादी माँ की सहेलियों को वॉच पार्टी पे जोड़ दिया। तो सब सहेलियां अपने अपने घरों में बैठ के देख पा रही हैं, थैंक्स टू द ग्रैंड चिल्ड्रन, और सबने साई संध्या वॉच पार्टी में कह ली एक दूसरे के साथ। तो कुछ इस तरह की चीजें भी की जा सकती हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में तो एनसीपीसीआर जैसा एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस चल रही हैं, इंडिविजुअली अप्रोच किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन उनके दिमाग में है तो वो थोड़ा सा खुल के कहें, वो हमारे नंबर्स ले सकते हैं, इंडिविजुअली अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, बात करने से बात बनती है, आज नहीं तो कल बनती है, बात किया करें। हमें आदत भी नहीं है बातें करने की, हम मौसम की बातें करते हैं, हम हमेशा फियर्स की बातें नहीं कर सकते, डर की बातें नहीं कर सकते, तनाव की बातें नहीं कर सकते। क्या बड़े बच्चों के साथ उनके बचपन की यादें तय कर सकते हैं? क्या हम अपनी पुरानी एल्बम्स निकाल के उनको देख सकते हैं? कब हम मनाली घूमने गए थे, मनाली में हमने ये किया था, तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे ऐसे मनाया था। बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जो शादी ब्याह के सीडीज देख रहे हैं एंड दे आर रीलिविंग दोस मोमेंट्स अगेन। बहुत दिलचस्प सा एक हमें मॉडल देखने को मिल रहा है। कुछ कपल्स में आत्मीयता बढ़ गई है, इंटीमेसी बढ़ रही है, बिकॉज दे गेटिंग टू नो ईच अदर, दे स्पेंडिंग टाइम। बट प्रियंका, कंट्रास्ट भी है इसके साथ कि कुछ कपल्स की फासले भी बढ़ गए हैं, क्योंकि 24/7 साथ रह के डिफरेंसेस कुछ जरूरत से ज्यादा दिख रहे हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम चीजें देखने को मिल रही हैं, हैरान भी कर रही हैं, परेशान भी कर रही हैं। बट फिर भी मैं कहूंगी कि थोड़ा सा दिलों को बड़ा करके, टॉलरेंस बढ़ा के हम एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य के साथ रह सकते हैं, अगर कोशिश प्रयास करते रहें। So maintain social distance, but do not maintain emotional distance, correct? So I think Dr. Singh, this actually segues into another question that I had. Abhi, especially social media pe, and I'd like to hear from Dr. Sharma after as well. बहुत सारा information है social media पे, news पे. There is, as Dr. Kumar was saying, there are helpline numbers. Now, some of those numbers are official, but there are a lot of other numbers. So, बहुत सारा confusion है कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, what is incorrect, what is correct, what is the most recent, what is official, what is not official. In addition to that, there is a lot of narratives going on in media that are conflicting with each other depending on the source that you read. So now, as perhaps an educational psychologist, maybe you can speak on behalf of the parents when they are exposing their children to news, or when they are guiding their children as to what to watch, what to believe. What do you have to say on that? I think this is a very important point, because I think हम लोग सभी, एक तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि प्लीज सारा दिन टीवी ऑन करके मत रखिए और सारा दिन न्यूज मत वॉच करिए, क्योंकि वो मिनट टू मिनट अगर आप वही चीज बार बार देखेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल, चिंता अवश्य बढ़ेगी, और हमें शायद वो ब्रेक लेने की बहुत जरूरत है। और जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करेंगे। और मैं ये जो अभी आपने पहले जो सवाल पूछा था, व्हाट इज गोइंग टू बी, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, अगर दिस इज द रोल मॉडल्स दैट पेरेंट्स आर गोइंग टू बी, के सारा दिन हम टीवी के सामने बैठे हैं या सारा दिन हम सोशल मीडिया को ही अपने फोन पर चेक कर रहे हैं कि क्या नया एक मैसेज आया है, तो बच्चों को फिर हम रोक तो सकते ही नहीं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेयर वी एज एडल्ट्स, पेरेंट्स हैव टू रियली सिट बैक एंड से कि क्या हम सही बिहेवियर हमारा क्या है। आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम भी अपना बिहेवियर थोड़ा सा, हम उसके बारे में थोड़ा माइंडफुल हो और उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। डेफिनेटली आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारी खबरें मिलती हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम वी नो आर्म द ट्रूथ। आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जांच कर ही सोर्सेज बच्चों को के लिए भी वही उपलब्ध करवानी चाहिए। कहना चाहिए बच्चों को कि MHA से जो गाइडलाइंस आएंगी वही सही है। आप बहुत सारी जो चर्चा आप सुन रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, वो शायद मनगढ़ंत भी हो सकती हैं। So I think it's very important that we try ourselves to first eliminate what doesn't seem to be, from official sources. And आज के दिन में तो जाहिर है कि हमें इसको बहुत बिल्कुल फूक फूक के, जैसे कहते हैं ना, कि हमें देखना चाहिए कि क्या आपको सही लगता है और क्या जो सही लगने वाली चीज भी सही ना हो।
as adults, this is what we need to teach our children as well. So we are the role models. We need to be doing it ourselves, और हम बच्चों को भी वही सीख दे पाएंगे अगर हम उस तरह का बिहेवियर खुद अपनाएंगे. And in terms of for support, I would think that the helplines, which are already there are a lot of counselors who've been given on those official lists. तो अगर आपको किसी की मदद चाहिए है, आप उन लिस्ट को देखिए. आपके पास बहुत वो सब जांच करके ही NCPCR and others have put out the list. आप उन्हीं इस समय स्पेशली जब आप जाके मिल नहीं सकते, आप credentials check नहीं कर सकते हैं, I would suggest look at those lists and follow those lists. That's a great suggestion. And as you said, NCPCR as well as the ministries, official ministries and union ministries on their main websites have put out not just phone numbers, but also email addresses. Fax number bhi hai, email address bhi hai. So if you have any questions related to COVID or anything whatsoever regarding the ministry with respect to each ministry, you can definitely look at those lists as you were saying, and actually the response is pretty quick. So I tested one out with the Ministry of Health, and I sent both an email and gave a phone call to them, and their answers came within 5-6 minutes. So they are super responsive to this day. Absolutely. And और जो सेतु ऐप है, सेतु ऐप भी यूज कर सकते हैं. आरोग्य सेतु, जी, आरोग्य सेतु भी ऐप यूज कीजिए. तो आई थिंक वही ऑफिशियल सोर्सेज में जो है आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो सही मिलेगी. एंड आपने जैसे कहा है बहुत प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो देयर इज नो नीड टू फियर फॉर दैट. Ji. And I wanted to ask Ms. Sahasrabudhe about Arogya Setu, but before that, I'd like to get Dr. Sharma's take on this same topic, क्योंकि बहुत सारा information है. There is a lot of information, and as you know, students in college, I also work with a lot of young students, especially those in college and postgrad. They are constantly, this is like glued to their bodies all the time. So it's either in their pocket, or it's vibrating, or it's ringing, or they're checking their Instagrams, or they're checking their, I don't think people use Facebook anymore, but they're checking their Facebooks or whatever it may be. And on these social media sites as well, Instagram, Facebook, whatever they are using, there is also information there. And this information is posted by other citizens. It is posted by different people. They are not official sources. What sort of guidance would you have for parents if you have a child who has access to perhaps the phone all the time, is a little bit more mature, so not maybe an 8-year-old, but maybe a college student who's constantly on their phones, they know the difference between right and wrong. What advice would you have for them for getting correct information and only looking and filtering out correct information? Actually, what happened is that parents are giving their mobile to children just to make them engage in games, or either they want them to work silently and calmly, so that आप थोड़ी देर मोबाइल खेल लो तो मैं काम कर लेता हूँ. So this is not done. As I told you earlier also, do something which is away from websites, away from mobile, away from TV, away from internet. Internet is like a coronavirus right now. They are giving you 90% of fake and 10% of right information, and the right information being hidden by those things. So there are many links, many things are there, but there should be a filter. Try and not to put your whole mind, soul, body, everything in TV and on internet, on Facebook, on Instagram, on Twitter, because this is not realistic. आप रियलिस्टिक लाइफ जो है वो बहुत अलग है. बहुत सारी न्यूज आती है, मजदूर जो है वो परेशान है, ऐसा है वैसा. ऐसा नहीं है. सरकार बहुत सारे अच्छे काम भी कर रही है. सो जो न्यूज आपको पॉजिटिव दे रही है, देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन दैट न्यूज. ट्राई एंड ब्रिंग दैट न्यूज टू योर चिल्ड्रन. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, आप उनसे बोलिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल आप किनारे रखिए, जस्ट कम्युनिकेट. आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ डॉक्टर सिंह एंड डॉक्टर कुमार. देयर शुड नॉट बी कम्युनिकेशन गैप. कम्युनिकेशन अगर बना रहेगा तो आपको 4 चीजें अच्छी और बुरी दोनों पता चलेंगी. हो सकता है मेरे पास कोई अच्छी खबर आई हो तो मैं आपको बता सकूं. फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स. एंड एज डॉक्टर सहस्रबुद्धे हैज सेड कि देयर शुड बी इक्वालिटी. काम को बांटना बहुत जरूरी है. अगर और वो घर का काम है, जेंडर बेस्ड काम नहीं है कि बर्तन मम्मी मांजेंगी और कपड़े भी मम्मी ही धोएंगी और थाली भी मम्मी उठा के रखेंगी. ये काम डिवाइड करना बहुत जरूरी है. ये मदर फादर दोनों डिवाइड कर सकते हैं. एंड द अबाउट न्यूज,
तो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फेक न्यूज लेकर आते हैं कि मैडम नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स हैं, तो आई सेड नो, let the website decide. Let your go to your JNKV website, you will find, you go to your ICR website, you will find the correct thing, or your Ministry of Agriculture. There are many ministries, union ministries, every link is given, and there are also channels which are giving you good news or giving you positive news, to just filter out the negative news from those positive news. क्योंकि जैसे हम आता है DNA आता है Z न्यूज पर, they are also giving us the positive news, और negative news वो कम बताते हैं. कुछ न्यूज चैनल्स हैं वो नेगेटिविटी ही बताते हैं, तो उन न्यूज चैनल्स को, उन साइट्स को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. हमें अपनी लाइफ में इंटरनेट को फिल्टर लगाना बहुत आवश्यक है. मैंने अपना फेसबुक बंद किया हुआ है 4 महीने से. इंस्टा भी मैं बहुत कम यूज करती हूँ, और मैं आपको बताऊँ इससे ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं है. एंड मेरी मदर यूज ही नहीं करती इंटरनेट. शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट लेडी ऑन अर्थ. इंटरनेट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी न्यूज को एक्सेप्ट कर लें. आप उसे पढ़ें, फिर आप डिस्कस करें, देन यू विल गेट टू अ कंक्लूजन. डायरेक्टली आप उसको पास ऑन कर दो, ये चीज गलत है. तो पेरेंट्स शुड हाइड सम न्यूज फ्रॉम द चिल्ड्रन. दे शुड कम्युनिकेट विद देम, एंड दे शुड नेवर लेट देम वॉच एवरी न्यूज, एवरी इंटरनेट एक्टिविटी और एवरीथिंग. ट्राई एंड ब्रिंग इंटरनेट अवे फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज ऑलरेडी इंटरनेट में हम इतना ज्यादा हैं. हमें थोड़ा सा इस समय इंसान को ज्यादा जरूरत है, इंटरनेट को इंसान की थोड़ी कम आवश्यकता है. सो जस्ट ब्रिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम दैट एंड ब्रिंग आउट पॉजिटिव थिंग्स. अगर बच्चा आपसे पूछता है कि मम्मा वो लॉकडाउन बढ़ गया है और अब क्या होगा, तो कुछ नहीं बोलना. आप उसको हाइड मत करिए. आप उससे बोलिए नहीं लॉकडाउन बढ़ गया बेटा, खत्म भी होगा, एंड देन यू विल गो टू स्कूल, और तब तक आप मेरे साथ एंजॉय करिए. आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, दिस विल बी वेरी गुड. और समटाइम्स एज मैडम हैज सेड कि सोशल की ये जो फाइटिंग एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ जो होता है, देयर आर सर्टेन केसेस कि बच्चों को मारते भी हैं, माँ बाप मार भी दे देते हैं, डांट भी देते हैं, फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं. तो ये गलत बात है. आप अपने ऊपर ठंडा पानी डालिए. जस्ट ब्रिंग योर एडल्टनेस, मेच्योरिटी से आप बच्चे के साथ बिहेव करें, क्योंकि बच्चे की कहीं गलती नहीं है, गलती हम में से किसी की नहीं है, बट उसको पॉजिटिव वे में ले जाना ही आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको अकेला मत छोड़िए, उससे कम्युनिकेट करिए, उस पर प्रेशर बिल्डअप मत करिए, और उसको पेशेंस सिखाइए, उसको अपनी एक्ट्स में बिलीव करना सिखाइए. उसे ये सिखाइए कि हर काम घर का सबका होता है, इक्वालिटी है, हर व्यक्ति हर काम के लिए कर सकता है और रिस्पेक्टफुल है, और उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वो उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल भी है. और एज द न्यूज आर कंसर्न, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर शुड बी सम फिल्टर इन दैट. एंड आप हमेशा नेगेटिविटी मत देखिए. जैसे कोई आपसे बोलता है इतने पेशेंट बढ़ गए ईरान में, इतनी इराक में, इतनी मौत हो गई. अरे ये भी तो देखिए कितने अच्छे होकर आए हैं. देर आर लॉट मेनी पीपल कि वो बाहर भी आए हैं. जो लोग आए हैं बाहर उस चीज से, वो भी हैं. जो लोग लॉकडाउन में हैं वो सेफ भी हैं. हमें उस चीज की पॉजिटिव देखनी है. आधा ग्लास भरा हुआ है ये देखना है, खाली है ये नहीं देखना है. तो हमको फिल्टर आउट करना चाहिए उन चीजों को. लेट्स जस्ट कम्युनिकेट एंड फिल्टर आउट दोज थिंग्स, एंड लेट्स बी मेंटेन अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम टीवी. That would be good for you. Communicate with each other, not with the internet. That is my thing, and that's the answer I can give you right now. No, that's a very good answer. It's very important. You know, it's very easy to say, very tough to implement, but it's actually not so tough because you know, there was one time where we just didn't have internet and we were at a site, so everyone was panicking for the first hour, and then after that 1 hour, you know, I think after 3 hours everyone was very cool without internet. They were like, oh, this is actually relaxing, we're noticing nature, we're noticing the outside, we're noticing our surroundings. So it became very easy. It's not that difficult. It's just, I think, a little bit more psychological. Ms. Sahasrabudhe, I wanted to get back to you. Now, we were talking a little bit about the Arogya Setu app. एक criticism है ये app का. There's a criticism that you know, it can take your data, it follows you, it tracks you. But I feel, I have the app on my phone. I feel that this is a very important thing because number one, we are not the only country that is using an app to track COVID-19. And I think that especially for jo abhi restrictions, I think have been lifted for migrant workers or people that have been stranded, whether you're a student or whether you're a pilgrim or tourist or whatever, now they are allowed to travel. So all the more important, I think the Prime Minister has also given a message that please encourage, especially the people who are traveling and even those who are not traveling, to download the app so that we can keep track
of those that do have COVID or COVID positive cases so that everyone remains safe? Can you talk a little bit about this? Because एक बहुत बड़ा criticism है, especially among youth, that I have noticed that no, it tracks your information and it tracks you, and why should I download it? इसके बारे में मुझे लगता है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपको सही जानकारी देता है कि आपके एरिया में कोविड की क्या स्थिति है। आपके 500 मीटर के अंदर कोई अगर पेशेंट है तो आपके वो ऐप में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, या 1 किलोमीटर के अंदर है, या जो भी पोजीशन है, स्थिति है, वो आती है। तो मुझे लगता है कि वो हर एक ने डाउनलोड करना ही चाहिए। तो अपने एरिया में अगर कोई है तो हमें कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, इसका वो गाइडेंस हमें मिल सकता है। हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो उसमें हेल्पलाइन का नंबर है, आप डायरेक्ट उस क्लिक बटन करके आप डायरेक्ट हेल्पलाइन तक पहुंच सकते हैं। और जब तक ये डेटा शेयरिंग या डेटा स्टीलिंग की बात आती है तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जिस मायने पे, जिस लेवल पे सब चीजें चलती है, उस इसमें आई डोंट थिंक कि मैंने इस रूम से उठकर मैं बाहर चली गई तो कोई तो मेरे ऊपर स्पाई कर ही रहा होगा कि ये यहाँ से उठ के बाहर चली गई। जैसे हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, अगर आप मैप्स देखेंगे तो उसमें आपका अपार्टमेंट के नाम से लेके सब चीजें उसमें आ जाती है। तो वो तो आपका डेटा वैसे भी स्टील हो रहा है, शेयर हो रहा है। लेकिन कोविड के समय तो हमने आरोग्य सेतु को पक्का डाउनलोड करके हमारी सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए। डेटा शेयरिंग की बात बाद में भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी सेफ्टी कोविड से करनी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। And I think that this is a very important point, because if we cannot track those that are COVID positive cases, or even those that are at home, there's no way of actually gathering data accurately. And this is, I think, the need of the hour at this point in India, especially among hotspot zones, containment zones, jo hai, even green zones, so that, you know, the spread of the or we can flatten the curve. Now let's talk a little bit about, I want to get your closing thoughts, but before that I have one final question. Dr. Kumar, perhaps you can start out with this. Physical and social activity, I know we touched upon it a little bit before, but this is, I feel, something that is necessary for parents, for senior citizens, for children as well, especially for children, because it's a way to get out their frustration. You know, everyone gets cabin fever sort of staying at home all day long. Now, what are some ways to sort of alienate and eliminate, sorry, not alienate, but eliminate this frustration that is caused from perhaps lack of stadiums being open? You cannot go for walks as freely. Now, I think the new restrictions in red zones are that between 7 p.m. and 7 a.m., you cannot go out for any non-essential sort of activity. So what are some ways to ensure physical and social and emotional well-being while at home? I'm sorry, I ask you very loaded questions. And I think your mic is off. It starts with the statement, optimum utilization of minimum resources available. So whatever we have, we put it to best use. We have a small balcony, we have a veranda, we can count the number of steps we take. We've got few planters planted in pots. So we've got duty list prepared for everybody. Roles and responsibilities are divided in the family. So कोई पौधों को पानी दे देता है, कोई पौधों को में गोड़ाई कर देता है, कोई पत्ते जो सूखे हैं उनको निकाल देता है, हम चक्कर लगा लेते हैं, हम वरांडा पानी थोड़ा पानी डाल के धो लेते हैं. So kind of exercise also, some kind of recreation also. फिर it is joint cooking day. आज मम्मी और बच्चों का joint cooking day है, आज दादी और बच्चों का joint cooking day है, आज मम्मी डैडी का joint cooking day है, आज dad और बच्चों का joint cooking day है. So preparation कौन कर रहा है, actual cooking कौन कर रहा है, laying of the table कौन कर रहा है, फिर reorganization of kitchen कौन कर रहा है. मतलब हम big task को slice out कर लें. एक I've come to know about a lot of families जिन्होंने अपना V time plan कर लिया है. So evening they fixed up 45 minutes का slot. Technology is coming to use. हमने YouTube का कोई वीडियो स्टार्ट कर लिया है, हम उसको देख के वर्कआउट्स करते हैं, एक्सरसाइजेस उसको देख के करते हैं. कुछ लोग योगा के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं. रामदेव जी की एक्सरसाइजेस
को फॉलो करें, कपालभाति कैसे करना है, अनुलोम विलोम कैसे करना है। पहले बच्चे और फैमिली सब इकट्ठे बैठ के शायद नहीं करते थे, लेकिन अब बच्चे और दादा दादी सब बैठ के अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हंसी भी आ जाती है उसमें कपालभाति करते हुए कि दादी माँ की टम्मी कैसे हिलती है। इट्स अ मैटर ऑफ जोक ऑल्सो, बट देन फन एंड लाफ्टर इज बाइंडिंग द फैमिली टुगेदर। जो बड़े बच्चे हैं, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, टीनेजर्स हैं, उनसे बड़े बच्चे हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनका अपना तरीका है वर्कआउट करने का। एरोबिक कर लिया, जुम्बा कर लिया, सालसा कर ली। सालसा किसके साथ करें? माँ और मम्मी और बेटा सालसा कर रहे हैं। दैट्स हाउ माय सन एट टाइम्स आल्सो टेल मी, कम ऑन, आई विल टीच यू हाउ टू डू एक्सरसाइजेस, यू नीड टू लूज वेट विद मी। तो इस तरह से अगर घर में कोई अपरेटस है, साइकिल है, ट्रेडमिल है, so children and families are trying to do that. मतलब अगर दिल में इच्छा है तो हम जिसको कहते हैं ना, we can fill the gaps of this virtual spaces with real time stimulations. रियल टाइम स्टिमुलेशंस हमारे आसपास हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें शेयर कर सकते हैं। It's a matter of fact that this is the time when we really need to redesign our lives from self-love to loving others, from nurturing of self to enhancement of everybody together, from working mundanely to creatively working together. हम कैसे एक्टिविटीज को क्रिएटिवली कर लेते हैं उसकी बात हो रही है। अलमारी को साफ करना है, क्लोजेट को क्लीन करना है, वो पुराने वो जो कहते हैं ना, पुराने ढेर पड़े थे चीजों को जिनको हमने कितने सालों से नहीं देखा था, अब हम सब मिल के सामान को छांट सकते हैं, बांट सकते हैं। I'm coming across a lot of people who've told me, who've shared this with me, कि पुराने लाइफ के इंसिडेंट्स के क्लोजर्स अब वो कर पाए, क्योंकि कुछ पुराना सामान यादों का कहीं पर सिमटा पड़ा था, वो उठाया मैंने, उसकी पोटली बनाई मैंने और उसको दूर किनारे कर दिया। Somehow they're able to come to term with losses in life. The grief which has been in their hearts for years together, they've tried to put an end to it. तो शायद ये कुछ बहुत significant gains रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड के, कि हम बाहर नहीं जा सके लेकिन हम अंदर तो जा पाए। So Priyanka, I think that would be these will be various ways of working out together, spending time together. कोई पुरानी मूवी बैठ के भी अगर हम देख लेते हैं, and we laugh and discuss those little dialogues and we try and enact those dialogues also. It's a matter of charm and it's a matter of fun. ये हमारे जमाने की मूवी है, ये आज के बच्चों की मूवी है, हम मिल के देखते हैं। ये हमारे जमाने की ऋषि कपूर साहब का वो गाना था और ये आज के बच्चों का कोई सिंगर है जिसका गाना है। समां भी वो फासले तय किए जा सकते हैं, पुल बनाए जा सकते हैं। Thank you so much for that answer. It's so important. Dr. Singh, एक audience का question है, and I'd like you to answer it. He is asking, this is Mr. Rajesh John. So thank you so much, Rajesh sir, for your question. Is online studying good for children? I'll just leave it to you to answer. So thank you, Mr. John, for the question. So I don't think there's anything that is wrong with online studying at all. I think it's just another means of studying. And it's all about how the teacher is actually presenting the material, how the content is given. I think that's very important. The process involved in online learning is equally important. And I think often that sometimes, is neglected. I've heard of parents, there was a parent who was telling me how, there are teachers, subject teachers of children for grade 4 and 5 who are completing a whole lesson in one day in a period of 40 minutes. Now, that kind of online learning is not going to be really beneficial because it's only going to add more stress if the child feels, oh my God, I haven't really understood. And a whole lot of PPT slides were shown to a child in grade 4 and 5. So I think online learning needs to be developmentally appropriate. It needs to be, adapted for the age group. जिस उम्र के बच्चों के लिए हम लोग online learning तैयार कर रहे हैं, वो kindergarten और preschool के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही अलग होना चाहिए. उसमें तो मुझे लगता है parents have to be involved. उनको आप बिठा नहीं सकते एक स्क्रीन के सामने, because then that is defeating the whole purpose. We should be using parents as our main teachers, even in that sense, So I think online learning for different age groups, अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग-अलग content, अलग-अलग processes, activities जो inbuilt होनी चाहिए. So there is nothing right and wrong. It's
the how of the online learning, which is more important. I think आज के दिन ऑनलाइन लर्निंग और टेक्नोलॉजी का बहुत बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग किस तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह हम लोग जो बना भी रहे हैं प्रोग्राम्स, उनकी हम किस तरह से कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं. बिकॉज ये टीचर्स के लिए भी तो एक बिल्कुल नई तरीके का एक है, जो अभी स्तुति बता रही थी कि वो पूरे महीने से सिखा रही है अपने बच्चों अपने स्टूडेंट्स को, बट दीज आर ओल्डर यंगस्टर्स. नाउ यू आर लुकिंग एट वेरी यंग चिल्ड्रन, इट विल हैव टू बी कंप्लीटली डिफरेंट. तो वही बात है कि हमें बहुत सोच इसमें डालनी चाहिए. टीचर्स के पास शायद एक कमरा ही ना हो जहाँ पे वो अपने बच्चों से अलग बैठ के करवा सके लेसन. So there are huge amounts of limitations also, but nothing wrong with online learning per se. Thank you so much, Dr. Singh, and thank you so much, Mr. John, for the question. Now, we just have about 5 minutes left, about 4 minutes left for the show before I give my closing. So I do want to go across all of our panelists and maybe just give your last thoughts, 1 minute each. The webinar was called Parenting During the Pandemic. We've spoken about a broad range of issues here. But what are your last thoughts? Perhaps some guidance for parents, perhaps some positive thoughts. Why don't we start with Ms. Sahasrabuddhe? ये न्यू लाइफ के बारे में हमें सोचना होगा. इसके बाद के लाइफ कैसे होगा, तो कुछ न्यू स्किल्स अगर हम इस पैंडेमिक के दौरान सीखेंगे तो दोज विल बी यूजफुल फॉर अस. इसका दरम्यान हम अगर पॉजिटिव चीजों को ही शेयर करें, ऐसा अगर हमने सोचा है, तो वो हमें करना चाहिए कि जितनी पॉजिटिविटी हम स्प्रेड कर सकते उतनी करनी चाहिए. इस कोरोना को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे एनजीओज अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. जैसे मजदूरों का विषय है या अपने हाउस मेड्स का इशू है, लोग अपने अपने तरीकों से उनको मदद कर रहे हैं. तो अच्छी चीजें अगर हम स्प्रेड करेंगे तो आगे आने वाला समय कुछ अच्छा लेके हमारे सामने आएगा. और हमें अंदर झांकने का जो मौका मिला है, उसको अंदर झांक के फिर हमें बाहर की दुनिया की तरफ देखना होगा. बाहर बहुत बड़ा उजाला है, उसकी तरफ हमें जाना होगा. और पॉजिटिविटी विल बी द की फॉर आवर न्यू लाइफ. थैंक यू. Thank you so much. Dr. Kumar, last thoughts, please. Dr. Kumar, are you there? Yeah. Any last thoughts, please? It is just the LLAF principle. Let's keep looking at each other. Let's attend to each other. Let's try and listen to each other, and let's have fun together. Awesome. Very well put and very concise. It can't get better than that. Thank you so much. Dr. Singh, your last thoughts, please. Yeah, so I think I'm going to take a spin on the WHO call for testing, and I'm saying for parenting, it's all about communicating. Communicate love, communicate belief, communicate hope, and communicate at this point emotions, and try and build a positive environment, first for yourself and also for children around you and the family. Thank you so much, Dr. Singh. And last but not least, Dr. Sharma, your last thoughts, please. Well, I'm not a parent right now, but I should say that you're blessed with a child. That is the most important thing happened in your life, and your kid is there, and he or she is just making you feel like a parent, like a noble person, like a hero or heroine. So just be calm, be supportive, communicate with them, have equality, have some acts with them, have some space for them, and please let them speak to you, because आप जो कर रहे हैं वही वो बच्चा करेगा. तो उनको आपसे बात करना बहुत जरूरी है. हम इंसान हैं और हम उन 5% लोगों में से हैं जिनको खाना है, सर पे छत है, एसी है, कूलर है. तो उनको वो चीजें बताएं जो जिंदगी में हमें मिली हैं. Okay, so we are very blessed and we can communicate and say to your child that you love them. Just say 2 or 3 times a day or 4 or 5 times a day that I love you. This is the main thing happens. और प्यार करें बच्चों से, because you are blessed people. So communicate and be positive and stay safe, stay at home. We'll fight the corona.
Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sharma. That was very well put by all of you. I know that I was throwing some very difficult and loaded questions at all of you, and I thank you so much for answering them, as well as answering our audience questions that were coming in. For information and for further information, as we said before in the show, agar aapko koi questions hai ya fir you're looking for some numbers or any confusion, please look to the NCPCR pages, the social media pages as well, and the handles of NCPCR for full information regarding this webinar, as well as any other information you might need. With that being said, I want to thank all of our guests and all of our experts today. You guys were lovely. I enjoyed talking to you. Thank you so much. And thank you for joining in. And last but not least, I'd like to thank our audience members. Namaste. Namaste. And I'd last but not least like to thank all of our audience members as well for being engaged, sending us your questions. And I'm sure our experts would like to take a look at the questions on the Facebook page and all of the places that this webinar is, and whatever they can answer, they will help as well. So thank you so much for joining us on this webinar, NCPCR's Parenting During the Pandemic. This is Priyanka Deo from New India Junction signing off. Namaste.